Hello students, today we are start lecture number 3 of chapter 5 laws of motion. Now in this lecture we are discuss a very interesting point of the physics. The name of this is dynamics of uniform circular motion. Dynamics of uniform circular motion, in which first of all we start a topic centripetal force and centripetal acceleration. How can we define a centripetal force and centripetal acceleration? If I have to define a centripetal acceleration, it is a property of motion of a body traversing a circular path. The acceleration is directed radially towards the center of the circle and has the magnitude equal to the square of the body's speed along the curve divided by the distance from the center of the circle to the moving body. Means अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगेगा और उससे उसकी वेलोसिटी जनरेट हो रही है और वो वेलोसिटी टाइम के हिसाब से उसकी अगर डायरेक्शन या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है. According to the second law of motion, this acceleration will also generate a force. ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन में जनरेट होगा. टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन में जनरेट होने के कारण जो एक्सीलरेशन हमको मिलेगा उसको हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहेंगे और जो फोर्स लग रहा है उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे. फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी शो वन एनिमेशन वीडियो to clear understanding of the centripetal force and centripetal acceleration. Imagine you've got a tennis ball attached to a string. You start swinging it in circles. Whoa now, watch out for your buddy. Let's take a closer look at the fascinating physics of this simple action. You've probably heard of Newton's second law of motion as it relates to objects moving in a straight line. Turns out, Newton's second law also tells us about the net force on an object as it moves in a circle. यहाँ पे आपने देखा कि एक बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है. सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी. आपने अपने बचपन में एक स्ट्रिंग के आगे पत्थर लगा के उसको सर्कुलर मोशन में घुमाया होगा, सिमिलर लाइक दिस. ओके, तो उसके कारण क्या होगा वो अभी हम देखते हैं. An object moves in a circle, its velocity changes direction. Since the velocity is changing, that means we have an acceleration. And we know यहाँ पे कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वी नो दैट द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ एक्सीलरेशन. दैट्स वाई यहाँ पे जो वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज हो रही है उसके कारण हमको एक्सीलरेशन मिलेगा. from Newton's second law that if we have an acceleration, we have a net force. न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि जहाँ पे भी एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा होगा और जो नेट फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा. ओके, टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा. Now back to our spinning ball. For objects undergoing circular motion, the net force on the object is called the centripetal force. It's a weird sounding word, but it's Latin for the phrase center seeking. It's named centripetal because the centripetal force always points to the center of the circle. The ball has a tangential velocity, so if you suddenly cut the string, it would fly off in whatever. यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है. तो यहाँ पे क्या हम अगर स्ट्रिंग को बीच में से या कहीं पे से अगर काटेंगे तो वो टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बॉल मूव करेगा. Where the tangential direction was at the moment you made the cut. But assuming you don't cut the string
and you keep swinging the ball's tangential velocity is constantly changing directions. This means the ball is accelerating, and the reason it's accelerating is due to the centripetal force. The centripetal force acting on the ball is constantly directing the ball towards the center of the circle, your hand. This, combined with the ball's velocity, keeps the ball swinging in a circle. The same centripetal force that keeps the tennis ball swinging in a circle also keeps roller coasters on the track as they go through a loop-de-loop. So the next time you're having a blast on a roller coaster, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का यूज़ कहाँ पे होगा? आपने रोलर कोस्टर देखा होगा। रोलर कोस्टर के जो मोशन है ओके, उसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एसिलरेशन यूज़ होता है। दूसरे उसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारी जो सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम में जो अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एसिलेशन लगाता है किस पे? अर्थ और दूसरे प्लैनेट पे। तो उसके कारण हमारे जो प्लैनेट के दूसरे जो हमारे जो अर्थ और दूसरे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के कारण वो मूव करते हैं। imagine you've got a tennis ball. Now we easily understanding the concept of centripetal force. तो यहाँ पे आप फिगर 5.11 में देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर के जो पाथ है वहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। ब्लैक कलर के पाथ पे कॉन्स्टेंटली जो हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली वो चेंज होती रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट की डायरेक्शन, यहाँ पे कंपोनेंट की डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर वो कांस्टेंट कंटिन्यूसली चेंज होती है तो वो एसिलरेशन जनरेट करता है। अभी जो वो एसिलरेशन जनरेट करेगा ओके, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वहाँ पे फोर्स होगा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे जो कंटिन्यूसली एसिलरेशन मिल रहा है, कंटिन्यूसली एसिलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m moving with uniform or you can say that constant speed v on a circular path of radius, the acceleration is v square upon r directed towards the center. It is called as a centripetal acceleration, AC, a suffix c, मतलब के centripetal acceleration. Hence, according to the Newton's second law of motion, force Fc is equal to mv square upon r. It is required to be acting on towards the center, इसलिए उसको बोलेंगे centripetal. This force is called as a centripetal force. The required centripetal force for the circular motion of planet around the sun is provided by the gravitational force on the planet by the sun. ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो कि जब भी कोई प्लैनेट और अर्थ सन के अराउंड मूव करता है तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है। Now the second theory on the basis of centripetal force and centripetal acceleration is motion of a vehicle on a level circular path. तो ये जो थियरी है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप कार, बाइक, साइकिल चला रहे हो और कोई सर्कुलर मोशन के तहत वो आप उसको रन कर रहे हो, तो वहाँ पे जो मोशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की थियरी अप्लाई होगी उसको अभी हम समझेंगे। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई टेक वन फिगर। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ, राउंड पाथ आपको दिखाई दे रहा है। उसकी जो आप देख सकते हो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो रेडियस r है। अभी यहाँ पे कांस्टेंट हमारे यहाँ जो ब्लू कलर का
इंडिकेट किया है वो आपको समझ लो कोई व्हीकल है। अभी वो व्हीकल ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। जब भी वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, हमने जैसे आगे पढ़ा वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो की डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे यहाँ पे चेंज हो रही है। कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कि वो एक्सीलरेशन जनरेट करेगा। एक्सीलरेशन जनरेट करेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट करेगा और सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर, सेंटर की तरफ यहाँ पे जनरेट हो रही है। इन फिगर अ व्हीकल इज शोन moving on a horizontal curve path. Such path can be considered as a part of a circle. It can move safely only if sufficient centripetal force is acting on the vehicle on this path, otherwise it will be thrown towards the outside. तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा तो ही वो तभी व्हीकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। अगर वो सेंट्रीपेटल फोर्स की अमाउंट रिड्यूस होती है या कम होती है तो वो व्हीकल आउट टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द सेंटर इट विल बी जस्ट गो। इन द सेकंड फिगर बी, अभी हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट लग रहे हैं फोर्स के उसके रिगार्डिंग हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप कार है, तो कार का जो वेट है वो वेट mg है। mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट है, उसके अपोजिट जो जनरेट हो रहा है वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन n, वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट किया है। अभी यहाँ पे जो कार और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो उसको इंडिकेट किया है Fs से, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स Fs, वो लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसके बारे में एक बार डिस्कस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ द व्हीकल है mg, उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन उसके कारण जो जनरेट होगा n, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स Fs लग रहा है ओके, वो लग रहा है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द रोड, फिगर में आप देख सकते हो। सिंस द व्हीकल हैज़ नो एक्सीलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में व्हीकल को कोई एक्सीलरेशन का कंपोनेंट नहीं है, कोई एक्सीलरेशन मिल नहीं रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे उसके अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन n माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, n माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो इसके बेस पे हमको इक्वेशन मिलेगा n इज इक्वल टू mg, उसको इंडिकेट किया है यहाँ पे 5.11.1 से। अभी ये n इज इक्वल टू mg है, इक्वेशन 5.11.1, वो आगे जाके हमको ये थियरी में यूज़फुल होगा, उसके बेस पे हम आगे थियरी कंक्लूड करेंगे। तो इसको हमको याद रखना है कि इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg। आगे बढ़ते हैं। द रिक्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स, द रिक्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स Fc फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ व्हीकल ऑन दिस रोड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय। अभी यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स कैपिटल Fc लगेगा, तो कैपिटल Fc कौन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ओके, कार और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट कर रहा है। दैट्स वाई वी कैन राइट दैट Fc इज इक्वल टू स्मॉल fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे जो फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r ओके, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। This frictional force is a static frictional force which opposes the impending motion of the vehicle away from the center of the circle. If the maximum frictional force of the road Fs maximum, अगर जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fs मैक्सिमम, तो वो कितनी होगी, μs इंटू n।
म्यूएस है यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी हमने 5.11.1 में क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, n इज इक्वल टू mg। तो n की जगह पे अभी हम mg यूज़ करेंगे, तो fs मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, म्यूएस इनटू n की जगह पे हमने यूज़ किया mg। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या है, fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यूएस mg, इक्वेशन 5.11.3। Here μs is the coefficient of static friction between the tire of the vehicle and the road. From this we can say that if the speed of v of the vehicle is such that requires centripetal force यहाँ पे कितना है, centripetal force है mv square upon r is less or equal to maximum frictional force μs mg। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन आर कितनी होगी, इट विल बी लेस और इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की होगी, तो ही व्हीकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से वो रन करेगा, अदरवाइज इट विल बी थ्रोन आउटवर्ड। देन ओनली द व्हीकल विल मूव सेफली ऑन दिस रोड। दैट्स वाई यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, mv स्क्वायर अपॉन आर लेसर इक्वल टू म्यूएस mg, दोनों साइड से m कैंसिल होगा, तो वी स्क्वायर का आंसर हमको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू लेसर इक्वल टू म्यूएस इंटू आर इंटू जी। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सेफ मोशन इज वी मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू अंडर रूट म्यूएस इंटू आर इंटू जी। मतलब इसकी इतनी स्पीड तक हम कोई भी सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर मोशन पे बिना गिरे हम कार की यह स्पीड इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो थ्रोन हो जाएगा। ओके, तो ये हमको वैल्यू देगी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सेफ मोशन, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। If the speed of the vehicle is more than v maximum, it will be thrown away from the road. This v maximum has the same value for all vehicle. Either it will be a light or either it will be a heavy. तो ये v maximum के जो वैल्यू हमको मिली वो सभी व्हीकल के लिए यही फॉर्मूला वैलिड है, अगर वो व्हीकल लाइट वेट व्हीकल है या हैवी व्हीकल है। सी डेट मास डज नॉट अपीयर इन द इक्वेशन। यहाँ पे देखा हुआ कि मास की यहाँ पे इक्वेशन में कोई भी अहमियत नहीं है, वो लाइट वेट होगा या हैवी वेट होगा, वी मैक्सिमम का इक्वेशन मास पे डिपेंड करता नहीं है। फ्रॉम दिस डिस्कशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज व्हाई डू वी स्लो डाउन द व्हीकल व्हाइल टर्निंग अ रोड। तो जब भी हम टर्न लेते हैं तो व्हीकल की स्पीड क्यों रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर वो हम व्हीकल की स्पीड रिड्यूस नहीं करेंगे तो वो स्पीड वी मैक्सिमम से अगर वो ज़्यादा होगी, ओके, तो वो व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करेगी। ओके, तो इसके लिए हम जब भी टर्न लेते हैं तो व्हीकल की जो स्पीड है वो वी मैक्सिमम की वैल्यू की रेंज में लाने के लिए हम व्हीकल की जो स्पीड है वो रिड्यूस करते हैं। अभी सेंट्रीपेटल फोर्स और एक्सीलरेशन में ही थर्ड पार्ट है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंक कर्व पाथ। तो जब भी यहाँ पे अभी देखो सर्कुलर मोशन जो पहले डिस्कस किया वो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे जो मोशन है उसके रिगार्डिंग किया। अभी हम मोशन ऑफ व्हीकल के डिस्कशन करेंगे कि जब भी कोई बैंकेड कर्व पाथ होगा तो उसके रिगार्डिंग अभी हमको डिस्कशन करना है। तो सिमिलर वे जैसे आगे डिस्कशन किया, यहाँ पे जो जब भी कार बैंकेड कर्व पाथ पे मूव करेगी तो उसके कंपोनेंट दिए गए हैं। तो पहले हम ये जो कंपोनेंट है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो कार है, यहाँ पे जो कार दिखाई गई है ये, उसका जो वेट है वो 8 mg, वो यहाँ पे देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप है, तो वहाँ से उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा।
अभी जो mg लग रहा है उसके अपोजिट उसका नॉर्मल रिएक्शन n जनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन जो n है वो कुछ एंगल पे है, यहाँ जो एंगल है वो थीटा है। तो जब भी यहाँ पे कोई रिएक्शन एंगल थ्रू जनरेट हो रहा है तो उसके दो कंपोनेंट हमको मिलेंगे, n cos थीटा n sin थीटा। यहाँ पे n cos थीटा और n sin थीटा के जो रिएक्शन के जो एंगल है वो आप यहाँ पे डायरेक्शन उसकी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, ओके, वो फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे कोई एंगल थ्रू लग रहा है, तो उसके भी दो कंपोनेंट F cos थीटा और F sin थीटा हमको मिलेंगे। तो जो जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है उसके रिगार्डिंग एक बार फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे कार है, उसके दो कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसके नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ एंगल थ्रू लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट n cos थीटा n sin थीटा लग रहा है, उसकी डायरेक्शन है n cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, n sin थीटा यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में है। वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट कर रहा है, तो उसके जो दो कंपोनेंट है F cos थीटा की डायरेक्शन ये है, F cos थीटा और n sin थीटा की डायरेक्शन सेम है। वैसे F sin थीटा और mg की डायरेक्शन सेम है। F sin थीटा और mg की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे n cos थीटा की जो डायरेक्शन है n cos थीटा की डायरेक्शन से अपोजिट है। यहाँ पे बैंकेट कर्व पाथ लिखा है, तो यहाँ पे मतलब क्या कि कोई एंगल, मतलब कि कोई स्लोप जैसा यहाँ पे है, उस पर आपकी अभी कार चल रही है। अभी यहाँ पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो वेट mg लग रहा है, वेट mg जो है वो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल फोर्स n जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द रोड अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो स्मॉल f लिखा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है पैरेलल टू द रोड, एंड एक्सीलरेशन जो जनरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। चलो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में व्हीकल का कुछ एक्सीलरेशन जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको अभी हम कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो n cos थीटा सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है तो लिखा है n cos थीटा। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है mg और एक कंपोनेंट है f sin थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, n cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट mg प्लस f sin थीटा। चलो तो उसके बेस पे n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस m sin थीटा, mg को इक्वेशन बनाएंगे तो दैट्स वाई mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 5.11.8। अभी जैसे हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स के लिए बात की, वैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी जो फोर्स लग रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द व्हीकल परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट्स वाई जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है या जनरेट हो रहा है वो कितना होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन r, विच प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ n एंड f। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन r इन द केस ऑफ बैंकेट कर्व पाथ वो कौन जनरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जनरेट कर रहा है। तो इस के रिगार्डिंग पूरी जो थियरी है उसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा, ओके, v मैक्सिमम का, तो वो v मैक्सिमम का जो आंसर है वो होगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो जब भी बैंकेट पाथ होगा उस पर व्हीकल आपकी मोशन कर रही है तो उसके रिगार्डिंग v मैक्सिमम का इक्वेशन है अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, अभी ये केस में जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है, ओके, ऑन
maximum safe speed on banked curve road is more than that of horizontal curve path। तो यहाँ पे जो वी मैक्स की जो वैल्यू है वो जो हमने बात की आगे के केस की उससे ज़्यादा है, मतलब कि बैंकेट कर्व रोड पे जो वी मैक्सिमम की जो वैल्यू है इट इज़ मोर देन टू द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, क्योंकि यहाँ पे जो टेन थीटा की जो वैल्यू है ओके वो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है। तो जब भी सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल पाथ की बात करेंगे उससे ज़्यादा सेफर स्पीड वी मैक्सिमम की बैंकेट पाथ पे हमको मिलेगी। ओके, बाय नोइंग द रेडियस ऑफ, अभी हम जो ये वी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो किसके बेस पे हमको मिलेगी, बाय नोइंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड आर। फर्स्ट के कर्वेचर ऑफ रोड आर अगर हमको रेडियस मिलेगी कर्वेचर की, ओके, बाय डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर of the vehicle on this road, and by knowing the coefficient of static friction μs between the tire and the road, equation जो हमको v maximum का मिला है enable us to find the necessary angle of banking theta of the road and accordingly such road should be constructed। तो अगर हमको v maximum की वैल्यू मिलेगी अगर मालूम है, दूसरी वैल्यू क्या है आर की कर्वेचर ऑफ द रोड अगर मालूम है, तीसरी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस की अगर वैल्यू हमको मालूम है, तो जितना कर्व पाथ बैंकेट पाथ का जो एंगल रखना है वो हमको एंगल थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी। तो उसके रिगार्डिंग अगर हमको ऐसा रोड बनाना है फॉर एग्जांपल कि जिस पे 100 किलोमीटर पर आवर की सेफ स्पीड व्हीकल के लिए हमको मिले, ओके, तो उसके लिए हमको आर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो वी मैक्सिमम की वैल्यू हमको मालूम है 100 किलोमीटर पर आवर, और स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस की अगर हमको वैल्यू मालूम है, तो जो एंगल रखना है एंगल थीटा बैंकेट पाथ का, तो वो हमको इजीली वो पता चल जाएगा। मोर एवर अ बोर्ड इंडिकेट सच मैक्सिमम सेफ स्पीड वी मैक्सिमम शुड बी प्लेस एट अ प्रॉपर प्लेस। तो वो उसके हिसाब से हम कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जिस पे मैक्सिमम स्पीड सेव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द रेफरेंस फ्रेम इन विच, आपको याद रखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओबेड इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ के तहत जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर करेंगे उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड सेकंड वन, एंड इन विच इट इज नॉट एबेड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेंगे उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको हम बोलेंगे। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे आप फिर से इम्पोर्टेंट टर्म है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कांस्टेंट वेलोसिटी को ध्यान में रख के फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड सेकंड वन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एक्सीलरेशन के ध्यान में रख के कुछ डिस्कशन करेंगे उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये जो चैप्टर है उसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कुछ गाइडलाइंस हमको ध्यान में रखने होंगी। ओके, तो मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन डायनेमिक्स। तो यहाँ पे जो डायनेमिक्स
के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होंगे उसमें क्वेश्चन में ओके डिफरेंट वर्ड यूज होते होंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन, एक्शन, एयर रेजिस्टेंस, थ्रस्ट, बॉइंट फोर्स, पुल, सेंट्रीपेटल फोर्स, वेट, टेंशन. ऐसे जब भी वर्ड यूज हो रहे हैं ओके दिस different terms are used in the discussion of many different phenomena or the process. All these terms means force. तो ये जितने भी फोर्स है, अगर फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, रिएक्शन लिखा होगा, एक्शन लिखा होगा, एयर रेजिस्टेंस लिखा होगा, थ्रस्ट लिखा होगा, बॉयंट फोर्स लिखा होगा, पुल लिखा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स लिखा होगा, वेट, टेंशन, ये जितने भी वर्ड है उसका यहाँ पे डायनेमिक्स में सिंपल मीनिंग होता है फोर्स. तो ये आपको बात याद रखनी है कि जितने भी वर्ड है उसका सिंपल मीनिंग आपको कंसीडर करना है कि यहाँ पे जो है वो फोर्स लग रहा है ओके इन द रेफरेंस ऑफ दिस फिनोमिना एंड द प्रोसेस. अभी नेक्स्ट वेरी मच इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, इट इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए पहले उसका मीनिंग समझते हैं कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या. In physics and in engineering, a free body diagram is a graphical illustration used to visualize the applied force, moments and resulting reaction on a body in a given condition. Okay? तो फ्री बॉडी डायग्राम एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है कि जो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, मोमेंट्स लग रहा है, रिजल्टिंग रिएक्शन जनरेट हो रहा है उसको हमको विजुलाइज करेगा. उसकी जो हमको डायरेक्शन, उसकी जो वैल्यू है वो एक डायग्राम के थ्रू हमको इंडिकेट करेगा. तो उसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. अभी फ्री बॉडी डायग्राम को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे आप स्क्रीन पे ब्लॉक देख रहे हैं, वो रैंप पे यहाँ पे सिचुएटेड है. चलो यहाँ पे जो ब्लॉक ऑन अ रैंप दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका जो मास है m. ओके चलो अभी यहाँ पे सेकंड फिगर में उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, मतलब कि यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहे उसकी अभी हम डायरेक्शन दिखाएंगे. तो यहाँ पे देखो m है मास, तो उसका जो वेट है मतलब कि mg, उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दिखाई गई है mg के डायरेक्शन है. यहाँ पे जो mg के डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अभी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट उसका नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में. और यहाँ पे देखो कि अगर इस तरफ हम बॉक्स को फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट उसका फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पे स्मॉल f से जनरेट किया है. तो एक मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया फ्री बॉडी डायग्राम है क्या वो समझाने के लिए. तो फ्री बॉडी डायग्राम कोई भी आप डायनेमिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाना होगा. फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लोगे तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, उसका रिगार्डिंग जो भी रिएक्शन जनरेट हो रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हम फ्री बॉडी डायग्राम में इंडिकेट करते हैं. To solve the problem, we should proceed according to the following step. First one, draw a schematic diagram showing the assembly of different objects, other objects connected with them and those which support this object. तो ये पहला स्टेप हमको ये करना है. अभी सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एज अ सिस्टम. तो जो भी हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसको हमको मानना है कि वो सिस्टम है, ऑफ विच वी वांट टू डिस्कस द मोशन. तो जिसके मोशन के हम डिस्कशन करेंगे उसको हम एक सिस्टम के तौर पे उसको सोचना है. इफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट देन टेक केयर दैट द एक्सेलरेशन वेक्टर मीन्स हमको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्ट should be the same. Third one, make a list of the force acting on the system by remaining parts of the assembly and by the other agencies. In this list, the force acting inside the system are not to be included.
तो ये कंडीशन में जो फोर्स इंटरनल फोर्स जो लग रहा है उसके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है। जो भी फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन से बाहर से लगेंगे, एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स के ही हम डिस्कशन यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में करेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीज़ है कि जो भी हम डायनेमिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हमको यूज़फुल होंगे। तो अभी हम आज के जो थर्ड लेक्चर है फॉर चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, तो आज जो भी डिस्कशन किया उसकी जो की पॉइंट है, जो समरी है, अभी हम वो डिस्कशन करेंगे। अभी फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। ओके, ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यहाँ पे जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहे हैं तो जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, mv² अपॉन r। इट विल बी एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो वो फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ पे, सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ लेवल कर्व रोड। ओके, लेवल कर्व रोड पे जो व्हीकल है उसकी जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो कितनी होगी, v मैक्सिमम इज इक्वल टू √μs इंटू r इंटू g। देन द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंकेट कर्व रोड। ओके, तो बैंकेट कर्व रोड पे जो व्हीकल है उसकी जो सेफ स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे v max इज इक्वल टू √rg इन ब्रैकेट μs प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस μs tan थीटा। यहाँ पे जो बैंकेट कर्व रोड की जो v max की वैल्यू होगी वो लेवल कर्व रोड की वैल्यू से ज़्यादा होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया रेफरेंस फ्रेम थ्रू। वो क्या है, द रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओबेड इज कॉल्ड एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड द वन इन विच इट इज़ नॉट ओबेड इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको दो चीज़, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में याद रखनी है कि जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत वो काम करेगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, otherwise it is called as a non-inertial frame of reference. The frame of reference with the constant velocity is called, constant velocity होगी तो वो inertial frame of reference है, constant acceleration के तहत होगा तो वो non-inertial frame of reference है। तो इतनी जो बात है, पूरा जो चैप्टर है उसका थियरी पोर्शन अभी ये लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच।